Today we will begin with our lecture 3, Introduction to DS. So far, we have been discussing the prerequisites. In the previous lecture, we have seen some concepts of data pointers in C and C++. Please mute your mics. Please mute your mics. Vishnu, mic switch off कर. Vishnu Mangade. Okay. Okay. So we'll discuss additional concept of pointers in C++ today. While discussing on the WhatsApp group, I've told you that if you store a number a is equal to 13, this means decimal value 13 will be stored in a. If you say a is equal to 0, 1, 0, okay, if you see here value stored over here, if I talk that about in decimal, so this number if is prefixed by a 0, if any number is prefixed by a 0, it indicates it is an octal number. So in octal you have these 8 digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and then this is 8. This is 8 in octal, but in decimal it is 8. So here 8 will be stored. Okay. And if you store this like this 0x10, so it is in hexadecimal, these are the digits. So this will be 10. So okay, but this is not 10. Here you have a, you write 10 as a, so you don't write 10 as 10. So this is not 10. Okay, this then you store b, then you store c, d. So this is a, b, c, d, then e. Last digit is what in hexadecimal? F. Okay, so this is 10 in hexadecimal, 11, 12, 13, 14, 15. So from 0 onwards to F15, so these are the 16 digits, including this 0. And then this cycle is completed and 10 comes. So this 10 is 16 in decimal. Okay. So when you print any number, now if you print this number as %d, it will be 13. If you print this as %o, so what is the octal equivalent of 13? Is 11, 12, 13, 14, 15. So decimal, so this is 0, decimal, this is 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. This is 14. Then you have 15. Okay. So this is decimal 8. This is 9. This is 10. This is 11. This is 12. And this is 13. So this 13, if printed in octal, it will be printed as what? 15. The difference is between, see, here is 7 is the highest digit. So this is 8 and 9. So these two digits, there is a difference. 8, 9. So 13, 14, 15. So you see this output for yourself. Now if you print this as %d, okay. If you print this as %x, this is 9. Okay. So if you see this 7 maps with this 7, this is 8, this is 9. D. Okay. Then this is A, then this is B. This is hexadecimal, sorry, this is decimal. So decimal equivalent. So sorry, decimal equivalent is here. Okay.
So if you take this as 8, this is 9, this is 10, this is 11. So this is octal 13 and this is hexadecimal number. So this is 12, this is 13. So this is 10, this is 11, this is 12, this is 13. So D will be printed in small if I use small x. If I use capital X, capital D will be printed. You try out this for each of this combination. Okay. So if this is in decimal, it will print 8. Octal, it will print 10. Hexadecimal, it will print 8. You try it out. Okay. इसको आप try करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा. Somebody wrote to me personally, sir, I have not understood this concept. I told कि lecture च्या वेळेस मी सांगेल, lecture के समय में बताऊंगा. So this is this. Okay. Anyways, let us come back. Somebody was asking about signed and unsigned. Before the start of the lecture, somebody asked me, sir, what is MSB and LSB? I was talking about MSB, most significant bit. So suppose you have 1 byte. It means there are how many bits in a byte? 8. Bit number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. See, this is called as the most significant bit. There are 8 bits. This is most significant, and this is least significant. Remember, if the number that you are storing here, if the number you are storing here, if it is positive, then this will contain 0. And here you will store the actual number. And this indicates the sign of the number. So if it is 0, it is positive. If it is 1, it means it is negative. Clear? Is this concept clear? Yes, sir. In other words, how many bits do you have to store the actual number if this is signed? Signed means 0. It will allow plus and minus both signs. Plus. It will allow both plus and minus signs. Signed number. It will allow positive and negative numbers. So how many bits will you get to store the actual number? 7. 8. 7. No, not 8. 8 the bit you will get to store the sign of the number. Actual number only 7 bits. 0 to 6. Now what is the value of 2 raised to 7? 128. 64. 164. 120. Always it is a odd number. The reason is, see, how do you get this? 2 raised to 0, and anything raised to 0 is 1. And any power of 2 which is greater than 0 will give you even number. These are the 7 bits. 2 raised to 0 is 1, 2 raised to 1 is 2, 2 raised to 2 is 4, 2 raised to 3 is 8, 2 raised to 4 is 16, 2 raised to 5 is 32, and 2 raised to 6 is 64. इसका टोटल करो.
127. तो आप यहाँ पर 0 से लेकर 127 तक नंबर स्टोर कर सकते हैं। मतलब टोटल नंबर्स कितने आएंगे? 128। हाईएस्ट वैल्यू क्या स्टोर होगी? 127। लोएस्ट वैल्यू क्या स्टोर होगी? 0। 0. ओके, सो हाईएस्ट वैल्यू ये होगी, ठीक है ना। और जो 2:7 वाला बीट है दैट विल बी 0, ये बीट 0 होगा और ये सब 1 1 1 1 होंगे। So it will be like this 0 1 1 1 1 1 1 1। ये नंबर बन गया आपका 127। और सबसे मिनिमम नंबर क्या होगा? साइन यानी पॉजिटिव नंबर 0. 0 होगा। तो ये रेंज हो गई आपकी पॉजिटिव नंबर्स की। ये साइंड है, तो अब नेगेटिव नंबर्स का क्या होता है? व्हाट अबाउट नेगेटिव नंबर्स? आपने तो बता Min- दिया 0 से minus लेकर 128. 127, 0 Minus से लेकर 128. हाँ, ये पॉजिटिव का रेंज हो गया और नेगेटिव का रेंज क्या हो गया? 128 तक। ठीक है, आप मुझे ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दो आप कि ये कैसे क्या होगा कि ये -128 है। आपको पता है क्या नेगेटिव नंबर कैसे स्टोर होता है मेमोरी में? MSB क्या? most significant bit 1 असेल ना? 1 असेल आणि हे काय असेल मग? Numbers 0 0. तो ये नंबर क्या हो गया अभी? Zero. अगर ये 0 है तो क्या ये -0 हो गया? 0 तो ऐसे स्टोर होता था ना, 0 असा स्टोर होत होता। दिस इज 0। Sir, minus 128. It is. हाउ? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। Means जो 2 raised to power 8 होती है तो उसका आंसर कुछ 128 आता है ना। वो तो सही है। ये ये जो है ये 1 × 2⁸ है क्योंकि यहाँ पर 1 है। ये प्लस 0 हाँ. × 2⁷ है, ठीक है ना। प्लस ये सब 0 से ही मल्टीप्लाई होने वाले लास्ट तक, तो ये सब ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, राइट। और ये टर्म क्या आएगी? Yes. 128. 128. तो ये आंसर आ गया 128 और ये नेगेटिव है इसलिए इसका साइन माइनस हो गया, राइट। Yes. क्या ये सही है? ऐसा होता है? पता नहीं सर. तो फिर मुझे बताओ ये 1's कॉम्प्लीमेंट 2's complement और 2's कॉम्प्लीमेंट टू स्टोर नेगेटिव नंबर्स क्या होता है? चलो ये 128 हमने लिखा, ये 128 है सपोज, ठीक है। ये 1's कॉम्प्लीमेंट के लैंग्वेज में क्या है अभी? सॉरी,
वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं, ये नंबर क्या है रियलिटी में? 0. 128. 128 है ये नंबर। नहीं सर, इट इज 0। हाँ 120 रियलिटी में 128 है ना, ये 128 है। हाँ अब 128। इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है हमको, तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है ना। अब इसमें एक ऐड करो, प्लस 1 1 0. कैरी 1 0. 0. कैरी 1 0. कैरी 1 और ये 1 आ गया, तो ये हो गया आपका। ये Two माइनस, complement. इसके कारण साइन आ गई, और ये ओरिजिनल नंबर हमको चेक करना है। ये जो नंबर अभी आ गया है, दिस इज इन टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट। Yes, sir. उल्टा लिखते. और एक एग्जांपल लेते, -3 लिख रहा है हम लोग को, -3, ठीक है। तो 3 कैसे लिखते हैं? कैसे लिखेंगे 3? 0 0 1 1 1 1 वंस कॉम्प्लीमेंट बोलो। 1 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 0 0. टूस कॉम्प्लीमेंट करो। plus 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1. 1. ठीक है, Zeros of that number. अभी कुछ मैथमेटिक्स है, अभी ये तो नेगेटिव नंबर हो गया क्योंकि इसका एमएसबी क्या है? 1 है, इसका एमएसबी 1 है। अगर ये नंबर, Yes, sir. ये नंबर क्या है, तो इसको देखने से नहीं पता चलेगा नंबर क्या है। ये नेगेटिव है क्या? अगर ये बिट 1 है तो हमको इसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, तो ये 1 कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ये उसमें ऐड किया कि ये 2 कॉम्प्लीमेंट हो गया। माइनस साइन यहां से ले ली, और अब ये नंबर क्या है? 2 + 1 3। अब ये नंबर है, ये नंबर है, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया 1 1 1 1 0, और इसमें 1 ऐड कर दो। 1 + 1 is 0 कैरी 1 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 0 कैरी 1, और ये 1। तो यहां से हमको पता चल गया कि ये नेगेटिव नंबर है, और इसके वजह से पता चल गया कि ये 128 है। आपको थोड़ा वर्कआउट करके मुझे बताना है कि ये सही है या गलत है। तो whenever the number is stored, ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, मैं कुछ रैंडम बिट्स लिखता हूँ, 1 0 0 0 1 1 0 0। ये कंटेंट्स है, और ये नंबर है, ये है साइन नंबर। साइन मतलब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नंबर स्टोर हो सकते हैं। तो ये नंबर है क्या? व्हाट इज दिस नंबर? माइनस तो होगा, ये तो मालूम है क्योंकि ये एमएसबी 1 है, ये माइनस है। चलो अब नंबर ढूंढो, क्या करना पड़ेगा? -12. कैसे? 1 + 1 is 0 carry 1, 1 + 1 is 0 carry 1, so this is 1, so 0 1 1 1 1 1, and this is 0. तू ना आता जर भांडे धुतले ना, धक्का बी लावला भांडेल तर मार खाशील तू. अरे वो कोणी धमकी दिली आता भांडे धुण्याची? मी तुम्हाला मागे पण बोललो, या सगळ्या गमती जमती ऐकायला मिळतात.
So this is 64 plus 32 plus 16 plus 4, only this much. So this 6 plus 4 is 10, 14, this is 16. 6 plus 4 is 10 and 1, 11. So this is minus 116. Am I correct? Do you understand? कि अगर कोई नंबर है इस तरीके से स्टोर हुआ है कि जिसका एमएसबी 1 है और बाकी वैल्यूज ऐसी है, तो ये 1 होने की वजह से साइन तो पता चल गई कि नेगेटिव है, और साथ में पता चला कि ये जो नंबर है ये 2's कॉम्प्लीमेंट में स्टोर्ड है। 2's कॉम्प्लीमेंट का जो ओरिजिनल नंबर अगर हमें निकालना है तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट बनाओ। 0 की जगह 1, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 1 की जगह 0, 0 की जगह पे 1, 0 की जगह पे 1, 0 की जगह पे 1 और ये 1 की जगह पे 0। ये हो गया 1's कॉम्प्लीमेंट। इसमें 1 ऐड करो, 1 plus 1 is 0 carry 1, ये 1 और ये 1, 1 plus 1 0 carry 1, 0 plus 1 is 1, ये 0, ये 1, ये 1, ये 1 और ये 0। और जो बिट्स 1 है उनका वेट सिर्फ आपको ऐड करते जाना है। तो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। 64 plus 32 plus 16 plus 4, ये हो गया minus 116। So this is the logic behind how negative numbers are stored। मैंने सिर्फ 8 बिट्स का लिया है। अगर 16 बिट का कोई नंबर है और साइन है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 32। Am I audible? Yes, sir. ये नेगेटिव का रेंज है, ये पॉजिटिव का रेंज है। आ गया समझ में? चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज आप टर्बो सी यूज कर रहे हैं और ये प्रोग्राम है आपका मेन इंटीजर चलो टेल मी द आउटपुट ऑफ दिस। 400. 400. 400. और कोई टर्बो सी पे कौन रन करके देख सकता है इस प्रोग्राम को इमीडिएटली? 400. Four. 4। इसका आंसर 400 नहीं आएगा। आपने किसी ने बोला 4, वो भी नहीं आएगा। -72 वगैरह कुछ आएगा ऐसा मुझे याद है, बट लेट अस चेक इट आउट। 72.
क्या आ गया आंसर देखो? 72. 72. दिस इज नॉट व्हाट यू एक्सपेक्ट. आपने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा आंसर देगा. बिल्कुल 10 का सर. चलो मैं बताता हूँ ये क्यों होता है. तो देखो ये 400 मल्टीप्लाइड बाय 400, तो ये ऐसा होता है ये मल्टीप्लिकेशन. चार सौ मल्टीप्लाइड बाय 400 और जो भी आंसर आएगा दैट विल बी डिवाइडेड बाय 400 400, और इसका जो भी आंसर आएगा इट विल गो इनटू सी. ठीक है ना? Yes, sir. 400 क्या होगा? 400 मल्टीप्लाइड 400 1600. 1600. कितने होगा? 1,60,000 होगा. Sorry, Yes, sir. और 2 जीरो आएंगे ना, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो. 1,60,000. अगर ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर ही आता है. मगर इंटीजर की रेंज तो अभी हम लोगों ने देखी. अगर हमारा 16 बिट का इंटीजर है जो टर्बो सी में होता है तो सिर्फ 16 बिट का है, और मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू जो स्टोर करेगा वो 32767 करेगा. पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम 32,000 होगी. 32,000 के ऊपर वैल्यू तो स्टोर करने की उसकी कैपेसिटी ही नहीं है इंटीजर की. तो जब आप दो इंटीजर मल्टीप्लाई करते हो तो ये इंटीजर जो आएगा ये 1,60,000 जो होगा ये राउंड होकर कुछ छोटा नंबर हो जाएगा, ट्रंकेट हो जाएगा कुछ तो भी. और जो भी ट्रंकेट हुई जो वैल्यू है वो अगर डिवाइड बाय 400 किया तो वो 72 आता है. ये ट्रंकेटेड वैल्यू है, ये 16 1,60,000 वाली नहीं. ये 1,60,000 स्टोर ही नहीं हो पाती इंटीजर में, और इंटीजर डिवाइड बाय अनदर इंटीजर, इसके कारण ये वैल्यू गलत होती है. अब इसका एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम लोग. ऐसा कुछ करो कि ये वैल्यू इंटीजर के ऊपर का कौन सा रेंज है? Long. लॉन्ग. Long integer. लॉन्ग इंटीजर. तो हम लोग क्या करते हैं कि ये सी को लॉन्ग कर देते हैं. लॉन्ग सी इज इक्वल टू 400 इंटू 400 डिवाइड बाय 400. क्या होगा? आपने ये सिर्फ ये सी को लॉन्ग किया है, और यहां से तो क्या आने वाला है? इंटीजर मल्टीप्लाई बाय इंटीजर इंटीजर आएगा, और इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर इंटीजर आएगा, और ये इंटीजर लॉन्ग में जाने की कोशिश करेगा. ठीक है, मैं करके देखता हूं क्या होता है. देखिए आप, इसे काम नहीं बनने वाला, पर ठीक है देखते हैं कैसा होता है. कंपाइल ऑल सक्सेसफुल, कोई एरर नहीं है. रन करते हैं. Alt F5. 72 आ गया. क्या गड़बड़ है? Sir, long integer ना? लॉन्ग पण इंटीजरच असतो, आणि लॉन्ग इंटीजर म्हटलं तरी इंटीजरच असतो, नाहीतर एरर दिली असती. Long double data type use करायचा का सर? नहीं, ऐसा कुछ करो ये. तो त्याला काय होता है, हा 400 जो है ना, ये जो 400 है ना, उसको लगता है ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है. ये तो वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन उसी तरीके करते हैं. तो सिर्फ एक चेंज और कराते हैं हम लोग. सी इज इक्वल टू 400 के बाजू में कैपिटल एल लिख देते हैं, इंटू 400 डिवाइड बाय 400. तो होगा क्या? ये 400 के ये है ना, ये हो जाएगा लॉन्ग. अब ये लॉन्ग और ये इंटीजर, तो साइज किसकी बड़ी है? लॉन्ग की. तो रिजल्ट बनेगा लॉन्ग. तो लॉन्ग में 1,60,000 आराम से आ जाता है क्योंकि 32 बिट है. और लॉन्ग डिवाइडेड बाय इंटीजर, इसका भी आंसर आएगा लॉन्ग. और ये तो लॉन्ग है ही, सो लॉन्ग में से लॉन्ग में ही जाएगा.
अब इसको हम लोग प्रोग्रामेटिकली देखते हैं। सिर्फ यहां कर देते हैं कैपिटल एल। ठीक है, ये लॉन्ग हो गया। अब कंपाइल करते हैं इसको, बिल्ड ऑन। एक्चुअली ये मैंने %l प्रिंट करना चाहिए, फिर भी हम लोग देखते क्या हो रहा है। देखो आंसर आ गया 400। गॉट इट? Yes, sir. हमेशा हमारे पास में ये एल वाला सिस्टम नहीं रहेगा, तो इन दोनों में से कोई भी एक नंबर आप लॉन्ग कर दीजिए। और एक ऑप्शन है, ये दूसरे वाले को लॉन्ग कर देते हैं। उसके आगे ब्रैकेट में अगर हम लोगों ने लॉन्ग ऐसा लिख दिया, इसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं, तो ये 400 इट विल रेफर दिस टू एज अ लॉन्ग नंबर। सो कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन हो गया, रन करते हैं, प्रोग्राम रन हो गया। अब आउटपुट देखते हैं, देखो 400 आउटपुट है। आप चाहे तो तीनों को टाइप कास्ट कर दो कि ये भी लॉन्ग है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको एक्सप्रेशन ट्री पता चल जाएगी तो आपको ये भी पता चलेगा कि किस वैल्यू को लॉन्ग कर दिया तो भी चलने वाला है। ठीक है, तो उसको कंपाइल करो, बिल्ड ऑल। ठीक है, रन रन, और ये 400 इज द आंसर। सो होप हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप कास्टिंग इज आल्सो क्लियर टू यू। जब हम लोगों ने ये एल लिखा, ये भी टाइप कास्टिंग था, एंड दीज आर इक्विवेलेंट। सी इज इक्वल टू लॉन्ग means convert this 400 into long first, then multiply it by 400, और जो भी आंसर आएगा then divide it by 400. So writing this way or this way, this is equivalent. ठीक है, hope the concept is clear to you here. Yes, sir. Okay. Yes, sir. I'll again repeat here. मैंने जो कुछ भी यहाँ बताया आपको, फिर भी आप ये क्वेश्चन का जवाब ढूंढिए। हाउ आर नेगेटिव नंबर्स stored in memory? इसको आप गूगल करिए, देखिए। ठीक है, दिस इज एक कॉमन गलतियां कहाँ होती है, हमारे रिजल्ट्स क्यों गलत आते हैं, ये इसका एक रीजन आपको पता चलेगा। और टाइप कास्टिंग क्या है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और आगे बढ़ते हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। देखो सी में चेंजेस करके जो बनी है दैट इज C++, एंड सी में डायनामिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए दो ऑपरेटर्स दिए। व्हाट आर दोस? Malloc and Calloc. Malloc and Calloc. C++ में नो, New and new and delete. Mm. And in C you had malloc, M is memory alloc, and second was free, to allocate memory, to free the memory, to allocate the memory, to free the memory. Okay, but in C++ now you can use new, you can use delete, you can use malloc, and you can use free also, because C++ supports all those things which were supported by C. These are memory functions, sorry, these are functions. These are library functions, say functions, whereas these two are operators. New and delete can help you instantiate objects. So when you are instantiating objects,
if you use new or delete, they make a call to the constructors and destructors. If you use this function, they will not call the constructors and destructors. Okay, so forget about this. So when you want to create objects and call constructor and destructors, then you use the concept of, or rather you use the new and delete operators. But if you want to allocate raw memory and you don't want to use new and delete, you can always use malloc on free. I'll take one example. If I say integer star p, so this is the pointer. And if you say p is equal to new p, no, sorry. New int. So you always there is a main over here like this. Okay. So you know this p, this is a pointer variable. And when you say new int, तो ये नया वेरिएबल बनेगा, उसका कोई नाम नहीं होगा. It doesn't have a name, but it will be allocated somewhere in the memory. Turbo अगर है तो 2 bytes. नाम नहीं है इस वेरिएबल को, ये स्पेस allocate हो गए डायनेमिकली. और इसका जो बिगिनिंग वाला एड्रेस है, इसका बिगिनिंग वाला जो एड्रेस है वो चला जाएगा p में. So it will come into p. Right? करके देखते हैं. Lots of errors. All gone. Okay. Now we'll execute this. Output क्या आएगा? Hundred. 100, right? Dead. तो expert बन गया अभी. All of you are getting expert in pointers and say 100 is the output, right? But what has happened? हम लोगों ने क्या किया? Integer star p, तो ये p new int बोला तो नया integer allocate हो गया और इसका एड्रेस इसमें आ गया. एड्रेस 1111 है, इसमें आ गया. और फिर हम लोगों ने लिखा था वैल्यू एट p इज इक्वल टू 100. वैल्यू एट p में क्या है? 1111. तो वैल्यू एट 11 मतलब ये 1111 है, यहाँ की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 100. और फिर हम लोगों ने इसको प्रिंट कर दिया printf %d वैल्यू एट p. जो ये वैल्यू एट p है वही है वैल्यू एट p है, इसका मतलब ये 100 प्रिंट हो जाएगा. So this is the one way to allocate memory. We'll see the another way to allocate the memory. Integer star p is equal to integer star malloc. कितने बाइट्स allocate करने हैं इंटीजर के लिए? 2 बाइट्स. 2 bytes. हमने कैलकुलेट करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, साइज ऑफ को बोल देते हैं कैलकुलेट कर दे. तो ये साइज ऑफ इंट यहाँ क्या रख देगा? 2. ठीक है ना? ये malloc का ओपन है, ये malloc का क्लोज है. ये साइज ऑफ इंट है मतलब 2.
2 बाइट अलोकेट करना है। अब बाकी प्रोग्राम वही रहेगा। ये न्यू हटा देता हूं मैं और मैं बोलता हूं MALLOC और 2 बोलता हूं। चलो क्या होता है देखते हैं। कंपाइल बिल्ड ऑल। हाँ, ये malloc should have a prototype। ये malloc फंक्शन जो है malloc, उसको वो पूछ रहा है कि इसको प्रोटोटाइप होना चाहिए। तो ये जो malloc फंक्शन है, इसको प्रोटोटाइप मतलब कुछ तो हेडर फाइल होगी कि जिसको हम लोगों ने यहाँ पर इंक्लूड नहीं की है। तो कौन सी फाइल में ये हेडर फाइल में ये होगा? malloc.h। नहीं, malloc.h नहीं है। alloc.h alloc Are you sure? yes sir देखते हैं। करेक्ट? Studlib। नहीं, करेक्ट है alloc.h। ठीक है। अब दूसरा एरर क्या है कि malloc फंक्शन जो है ना वो void star रिटर्न करता है और आपका p तो int star है। malloc फंक्शन क्या है देखो, ये एरर पढ़ो, कैनॉट कन्वर्ट void star। तो ये malloc जो है ना ये void star रिटर्न करता है। ये F1 बटन अगर आप प्रेस करें तो आपको हेल्प आएगी, मगर ये एडिटर की हेल्प है। ठीक है। तो ये जो malloc फंक्शन है ये void star रिटर्न करता है, मतलब ऐसा रिटर्न करता है void star। हमें void star नहीं चाहिए, हमारे लेफ्ट साइड में क्या है, int star है। तो हम लोग इस पॉइंटर को इस पॉइंटर में कन्वर्ट कर देते हैं, टाइपकास्ट कर देते हैं। तो हम लोगों ने टाइपकास्ट कर दिया क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या है, p कैसा है, int star है, राइट। हम लोगों ने void star को कन्वर्ट कर दिया int star में। अब कंपाइल करते हैं। करेक्ट, कंपाइल हो गया प्रोग्राम। चलो रन करते हैं। Alt F5 से आंसर देखते हैं, 100। सो ये जो हम लोगों ने यहाँ पर किया है p इक्वल टू ये int star, ये इसलिए किया है क्योंकि जो प्रोटोटाइप है malloc का उसमें लिखा हुआ है void star malloc। प्रोटोटाइप इस तरीके से फंक्शन का कि malloc रिटर्न करता है void star, पर हमें ये जो एड्रेस है void star में से int star में कन्वर्ट करना है। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं int star और फिर ये टाइपकास्ट होके फिर p में आता है। सो दिस इज वन वे टू यूज न्यू ऑपरेटर and this is another way to use the malloc operator. So both of these two things will do dynamic memory allocation. You can also dynamically allocate an array. You can use new or you can use malloc also. So this will remain as a homework to you. प्रोग्राम खत्म होता है तो हमें ये न्यू से अलोकेट किया हुआ जो मेमोरी होगा उसको फ्री करना होगा। तो हम लोग बोलेंगे डी यदि टी डिलीट पी, तो पी में जिसका भी एड्रेस होगा वो वाली मेमोरी मतलब ये सिस्टम को रिटर्न दी जाएगी। और यहाँ पर फ्री बोला जाएगा, फ्री और पी मतलब पी में जो भी एड्रेस होगा यही होगा 1111, ये वाली जो मेमोरी है वो फ्री हो जाएगी। दोनों में फर्क ऐसा है कि न्यू केवल कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और डिलीट केवल डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। malloc और फ्री में ऐसा नहीं होता है। तो इट इज रिकमेंडेड कि अगर आप C++ यूज कर रहे हो, यूज न्यू एंड डिलीट, एंड इफ यू आर राइटिंग C कोड देन यूज malloc and free। malloc and free, M means memory, alloc means allocate। Hope the concept of dynamic memory allocation is clear to you।
This memory is Yes, allocated sir. into heap. This memory is allocated into heap, not on the stack. तो इसका एक ड्रॉबैक है कि अगर ये कोई फंक्शन होगा, सपोज फंक्शन f1 होगा, तो जब फंक्शन शुरू होगा तब ये p जो है ये स्टैक पर क्रिएट हो जाएगा, और ये जो मेमोरी एलोकेट होगी वो होगी हीप पर। और जब ये फंक्शन में से आप बाहर निकल जाओगे, और अगर आपने डिलीट p नहीं लिखा है, डिलीट p नहीं लिखा है, ये मेमोरी एलोकेट हो जाएगी आपकी, ये p है, ये 1111 है सपोज, और ये वैल्यू आ गई p में 1111। जब इस फंक्शन में से आप बाहर चले जाओगे तो ये p डिलीट हो जाएगा, ये मेमोरी एलोकेटेड रहेगी, मगर उसका एड्रेस किसी वेरिएबल में नहीं रहेगा, क्योंकि जो वेरिएबल था वो हमारा डिलीट हो गया। ऑटो वेरिएबल का एक नुकसान ये है, ठीक है। ये क्या, ये जो मैंने अभी बताया आपको कि ये स्टैक में एलोकेट होती है वो ऑटो वेरिएबल है, मेमोरी एलोकेट हो गई है, और जब ये फंक्शन में से बाहर चला जाएगा तो ऑटो वेरिएबल डिलीट हो जाएंगे, पर हीप में मेमोरी एलोकेट रहेगी। इससे क्या नुकसान होता है, कैन यू टेल? आई लीव दिस एज अ होमवर्क टू यू, मुझे आप लोग बाद में बताना है, ठीक है? अगर नहीं बता पाओगे तो वी विल डिस्कस ऑन दिस लेटर ऑन। मेमोरी वेस्टेज होगी सर वो हीप में की। हाँ, हीप में की मेमोरी अननेसेसरी ऐसे एलोकेट होती रहेगी, वो फ्री हम लोग करवाएंगे नहीं। तो जब हमारा प्रोग्राम एग्जिट होगा तभी वो गार्बेज कलेक्शन होगा, नहीं तो तब तक वो जो मेमोरी है वो एलोकेट होते रहेगी। तो दिस इज अ वेरी बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, वो कभी फ्री नहीं होती है, ठीक है? जिनके समझ में आ गया वेल एंड गुड, जिनके समझ में नहीं आएगा फिर से वीडियो देखो, व्हाट वर्ड्स आई हैव सेड, प्लीज लिसन टू देम केयरफुली, ओके, एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आई मीन टू से, फिर मुझसे डिस्कस करो। सो दिस वाज अबाउट द क्वेश्चन अबाउट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, वी हैव सीन दिस आल्सो। Back to the concept of pointers again. Today we will see what is the structure. In fact, I am not going to detail of structure, but you know struct ABC, and in fact I'll give this another name, struct node, and we'll have integer A, integer B. What happens after you define such a structure? Do you get space in memory? When you write struct node integer A integer B, ऐसा एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया आपने, तो क्या मेमोरी में स्पेस मिलती है आपको? Am I audible? यस सर। हाँ, तो मेरा सवाल का जवाब दो। मालूम तो नहीं, बट मिलती होगी सर स्टैटिक वेरिएबल एज ऑन स्टैट। नहीं, ये सिर्फ डिक्लेरेशन है। हाँ नाही सर, आपल्याला एक इससे- व्हेरिएबल क्रिएट करना। हाँ, जब तक हम लोग वेरिएबल क्रिएट नहीं करते हैं तब तक स्पेस नहीं मिलेगी। अगर ये सी में लिखते हो तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, स्ट्रक्ट नोड जेड, और सी प्लस प्लस में लिखते हो तो नोड जेड। ये सी प्लस प्लस में है और ये सी लैंग्वेज में है, ठीक है? अब स्पेस मिलेगी। अब स्पेस कैसी मिलेगी? सिर्फ दो कंपार्टमेंट वाली स्पेस मिलेगी। पहला कंपार्टमेंट में ए होगा,
दूसरे में p होगा। ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये दोनों की वजह से ये होगा। और इसका बिगिनिंग एड्रेस सपोज 1111 है, ठीक है, इसका एड्रेस 1113 रहेगा, पर ये टोटल ऑब्जेक्ट का बिगिनिंग एड्रेस ए का बिगिनिंग एड्रेस होगा। तो मेमोरी में ये बनेगा ए, ये बनेगा बी, ए इज 1111 और बी इज 1113। मगर चूंकि ये एक ही वेरिएबल है जिसका नाम z है, उसका बिगिनिंग एड्रेस ए का बिगिनिंग एड्रेस होगा। होप दिस इज क्लियर। Yes, sir. Yes. ओके, आगे बढ़ते हैं। सर सर नोड हे स्ट्रक्चरचं नाव आहे का स्ट्रक्चरचं? हो, आपण नवीन डाटा टाइप बनवलाय ना, नवीन डाटा टाइप बनवलाय नोड नावाचा डेटा टाइप. सो दिस इज न्यू डेटा टाइप. तर सी मध्ये तसं स्पेसिफाय करायचं आवश्यकता नसते का? कशी? मीन्स स्ट्रक्ट कीवर्डने जसं नाही, हे सी मध्ये आहे. स्ट्रक्ट नोड झेड असं पूर्ण लिहावं लागतं. हा डिफाइन आपण दिलं ना, इकडे हे डिक्लेअर केलं ना, स्ट्रक्चर असं असेल, ऐसा स्ट्रक्चर होगा. ये एक बार बता दिया हम लोगों ने. और जब वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना हम लोग, तो ये पूरा लाइन लिखना पड़ता है, स्ट्रक्ट नोड जेड. ये देखो, ये जो चीज लिखी है मैंने, ये सी और सी प्लस प्लस दोनों में नया डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए लिखते हैं हम लोग. और जब वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना, वेरिएबल डिफाइन, तब ये करना पड़ता है. ये सी में ऐसा लिखना पड़ेगा, स्ट्रक्ट नोड जेड. और सी प्लस प्लस में ये स्ट्रक्ट नहीं भी लिखा तो चलता है, नोड जेड. होप दिस इज क्लियर. यस सर. एनालॉजी दिखाता हूँ, एनालॉजी दिखाता हूँ. मुझे फैन लाना है, बाजार में जाके फैन लाना है, ठीक है. तो मुझे बोला जाता है ऐसा वाला फैन लाओ. तो आ गया क्या फैन घर पे? नाही. नहीं सर. तो ये क्या है? ये डिक्लेरेशन है सिर्फ. जब मैं बाजार में जाता हूँ, दुकानदार को पैसे देता हूँ, और जो मुझे एक्चुअल वाला फैन देता है, एक्चुअल वाला फैन, ठीक है, चेक वगैरह करके जो एक्चुअल वाला फैन जब मैं लाऊंगा, तो ये हो गया डेफिनेशन. तो एक्चुअल में जो है ये फैन. तो यहाँ पर जो होता है ना कि मुझे कैसा डाटा टाइप बनाना है, तो मैं बोलूंगा स्ट्रक्ट बुक. बुक में क्या होगा? ये कैरेक्टर तो होगा, उसका नाम होगा बुक का, फिर उसका इंटीजर में प्राइस होगा, देन इंटीजर में इसको पेज नंबर स्टोर करने हैं तो पेजेस होगा, और कुछ होगा. तो ये सिर्फ हो गया उसका डिस्क्रिप्शन की कैसा होगा. और जब मुझे चाहिए, तो सी में अगर लिखना है कि मुझे इस तरीके से स्पेस चाहिए मेमोरी में, तो मैं बोलूंगा स्ट्रक्ट बुक, वेरिएबल का नाम सपोज ए. और यही चीज अगर मुझे सी प्लस प्लस में लिखनी है, तो मुझे सिर्फ नया डेटा टाइप बुक और ए लिखना पड़ेगा. सो दिस इज द न्यू डेटा टाइप दैट आई हैव क्रिएटेड. और डेटा टाइप में क्या होगा ये यहाँ पर बता दिया है. तो समझ में आ गया आपके? यस सर. Yes, के जगह sir. पे आपको चाहिए कि स्ट्रक्ट नहीं लिखना है, मुझे क्लास लिखना है, तो लिख सकते हो आप. बट जो सी के कंपाइलर में कंपाइल करेंगे, उसमें क्लास कीवर्ड पता नहीं चलेगा उसको, इसीलिए हम लोग स्ट्रक्ट के बजाय, सॉरी, क्लास के बजाय स्ट्रक्ट यूज करेंगे. ठीक है. और दूसरा फायदा होता है, वहां पे लिखना नहीं पड़ता है प्राइवेट या पब्लिक. बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक होते हैं. चलो आगे बढ़ते. सो स्ट्रक्ट नोड इंटीजर ए, इंटीजर बी, वेरिएबल डिफाइन करते हैं. ये सी में होगा तो स्ट्रक्ट नोड, सी प्लस प्लस में होगा तो सिर्फ नोड. हो गया जेड. तो ये लिखने से क्या होगा? मेमोरी में जगह मिलेगी, उसमें 2 कंपार्टमेंट्स हो गए, इसका टोटल नाम जेड. 2 कंपार्टमेंट्स हो गए ए और बी. जेड में
का ए पार्ट z डॉट ए, ये वेरिएबल नेम है, z डॉट ए 10, तो z का ए पार्ट 10, z डॉट बी इक्वल टू 20, तो z का b पार्ट 20। ये जो होगा ये मेन के अंदर होगा, ठीक है, दिस इज इन मेन। और हम लोग अगर बोलते हैं प्रिंट एफ %d इसमें 10 डॉट्स है सपोज, और z डॉट ए कॉमा z डॉट बी, तो ये प्रोग्राम प्रिंट करेगा 10 और 20, ठीक है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये z, यहाँ पर हम लोग डॉट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। दूसरा प्रोग्राम, ये स्ट्रक्ट कॉमन ही है, स्ट्रक्ट नोड, यहाँ पर होगा इंटीजर a, यहाँ पर होगा इंटीजर b, और ये होगा सेमीकोलन। अब ये मेन में क्या लिखा है वो देखो, ये मेन में है, मैं नहीं लिख रहा हूँ मेन, पर मेन के अंदर कहीं तो भी लिखा है स्ट्रक्ट नोड स्टार z। बोलो क्या होगा? यहाँ देखो हम लोगों को z डिफाइन किया, एक दो बाइट्स मिले ना ना ना, नॉट 2 बाइट्स, 2 मेमोरी लोकेशंस मिले, और अगर एक का इंटीजर का साइज 2 है तो 1 2 3 4 चार। बाइट्स अलोकेट हुए, राइट। z के लिए 4 बाइट्स अलोकेट हुए ये सारे। अब यहाँ पर बोलो कितने बाइट्स अलोकेट होने वाले हैं? Nobody wants to answer? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलत होगा, दूसरा क्या होगा? आंसर देने की कोशिश तो कुठे? करो। स्ट्रक्ट नोड स्टार z म्हटल्याने स्ट्रक्ट नोड स्टार z ऐसा लिखते हैं, तो कितना बाइट्स अलोकेट होगा z के लिए? 2 4 बाइट। क्यों 2 बाइट हो गए? सर पॉइंटर है ना, तो कोई पॉइंटर भी को तो 2 पॉइंटर, बाइट लग। कोई भी पॉइंटर 2 ठीक बाइट्स। से वेरी ठीक गुड। है। ओके, सो मैं थोड़ा सा स्पेस मेरे पास होना चाहिए, तो यहाँ पे से उसको हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ z, और इसके लिए हमको ये 2 बाइट्स मिले। ये 2 बाइट्स मतलब ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे छोटी सी लाइन खींची मैंने, ओके। अब मुझे बताओ कि अगर मैंने स्ट्रक्ट नोड स्टार z ऐसा बोला, तो क्या मैं ये a और b के लिए वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ? रिपीट माय क्वेश्चन। जैसे इस तरीके में हम लोगों ने z पॉइंट a इक्वल टू 10, z पॉइंट 2 इक्वल टू 20, यानी a और b में 20, 10 और 20 वैल्यू स्टोर की थी, तो ऐसा लिखने के बाद, स्ट्रक्ट नोड स्टार z लिखने के बाद, क्या मैं a में 10 और b में 20 वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ? यस और नो? Yes, sir. कैसे? वहां पे a और b है ही नहीं, कैसे स्टोर करूंगा? तो ऐसा कर सकते हैं, z इज इक्वल टू, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, स्ट्रक्ट नोड स्टार। ये स्ट्रक्ट नोड स्टार इसलिए लिखा क्योंकि ये z का टाइप स्ट्रक्ट नोड स्टार है। एमअलॉक, Alloc. साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, स्ट्रक्ट नोड, ये एक ही लाइन पे टाइप करना है। ये साइज ऑफ ओपन, साइज ऑफ क्लोज हो गया, एमअलॉक क्लोज हो गया, सेमीकोलन। इससे क्या होगा? एमअलॉक अलोकेट करेगा 4 बाइट्स, पहला का हिस्सा होगा a, दूसरे का हिस्सा होगा b। अब जैसा यहाँ पर इसको नाम था z, वैसे इसको कोई नाम नहीं है क्योंकि ये डायनेमिकली अलोकेटेड है, पर ये जो स्टार्टिंग एड्रेस a का होगा वो स्टार्टिंग एड्रेस इसका होगा, और ये स्टार्टिंग एड्रेस जा रहा है z में, क्योंकि दिस एड्रेस इज गोइंग इनटू z। एमअलॉक जो रिटर्न कर रहा है वो जा रहा है z में, 1 1 1 1। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस।
साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड मतलब 4 बाइट्स, ये देखो ये 4 बाइट्स है, ये 2 और ये 2, 4 बाइट्स। ये जहां से शुरू होगी उसका एड्रेस है 1111, ये चला जाएगा जेड में आ गया 1111। हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस और नो? यस सर। अब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ z डॉट a इक्वल टू 10 और z डॉट b इक्वल टू 20? यस। नो, आई कैन नॉट राइट लाइक दिस। एरो ये ऑपरेटर वापरावा लागेल. राइट, ये जो z है ये उसका डेटा टाइप z है, टाइप z है, मगर ये z डेटा टाइप स्ट्रक्ट नोड नहीं है, ये पॉइंटर है, तो वो डॉट ऑपरेटर यूज नहीं कर पाएगा। पॉइंटर अगर है तो पॉइंटर ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। z पॉइंटर a इक्वल टू 10 और z पॉइंटर b इज इक्वल टू 20। ये एरो ऑपरेटर जो है, तो z जहां पॉइंट कर रहा है उसका a मतलब यहाँ आएगा 10, और z जहां पॉइंट कर रहा है उसका b, z का पॉइंट कर रहा है 1111 को, 111 का b यहाँ पर जाएगा 20। और फिर ये प्रिंटफ आप यूज कर सकते हो, प्रिंटफ %d डॉट 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 %d z एरो a z एरो b ब्रैकेट कंप्लीट। देखो ये वेरिएबल का नाम z है, ये वेरिएबल है z, वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्ट नोड, तो z में a और b है, मगर ये स्ट्रक्ट नोड स्टार z है, ये पॉइंटर है, इस पॉइंटर में a b प्रकार नहीं होता है। कहीं दूर एमोलॉक ने हमको मेमोरी एलोकेट कर दी है, जिसका एड्रेस हमारे पास में है, जिसका एड्रेस हमारे पास है उसका a, जिसका एड्रेस हमारे पास है उसका b। So this is the difference between the dot operator and the arrow operator. Hope you have understood this. Yes, sir. Yes sir. Anybody who has not understood this? ये कॉन्सेप्ट में आपने BCA या फिर BSc में सेकंड यानी डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट में ये कॉन्सेप्ट यूज किया होगा आपने, वापरला है कि नहीं? नहीं सर। लिंक लिस्ट के प्रोग्राम लिखे नहीं आपने? Yes sir. Yes sir. So some of you might have used it, some of you might have not used it, depending on the syllabus what you had, right? चलो और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो अबे हमें ये डॉट ऑपरेटर की जरूरत ही नहीं है, हम लोगों को खेलना है सिर्फ इस एरो ऑपरेटर के साथ में। फिर से एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रक्ट नोड ब्रैकेट ओपन इंटीजर इन्फो, अब बीच में लिखता हूँ नीचे स्ट्रक्ट नोड स्टार लिंक। चलो अगर मैंने कोई वेरिएबल डिफाइन किया स्ट्रक्ट नोड ए, क्या होगा ए के लिए? क्या होगा? ये पॉइंटर है या वेरिएबल है हमारा? नॉर्मल वेरिएबल है, वेरिएबल। वेरिएबल। Variable. हाँ, तो उसको 2 कंपार्टमेंट्स होंगे, यस। एक होगा इन्फो, दूसरा Address. नहीं, एक का नाम होगा इन्फो, दूसरे का नाम क्या होगा? स्टारलिंक। लिंक, सिर्फ लिंक, और ये होगा पॉइंटर टाइप का। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल इंटीजर और ये होगा पॉइंटर, ठीक है ना? राइट? Yes, sir. ओके। Yes sir. स्ट्रक्ट नोड बी, और एक बनेगा ऐसा, इसका नाम होगा बी। सपोज ए का एड्रेस है 1111, बी का एड्रेस है 2222।
struct node star head, कितना बाइट मिलेगा ये लिखने के बाद? 2 byte. सिर्फ 2, मतलब पॉइंटर मिलेगा। अब ये बोलो हेड इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, हेड में क्या आएगा? It's address. 1 1 आएगा 1 1 1 आएगा 1 1 1 1, 1 1 1 ये पॉइंट कर रहा है ए को, राइट? ए डॉट इन्फो इक्वल टू 10, क्या होगा? यहाँ 10 आ जाएगा, A ठीक है ना? अब मैं लिखता हूं ए डॉट लिंक इक्वल टू एड्रेस ऑफ बी, ये लिंक पार्ट में क्या आएगा? 2 2 2 2. 2 2 2 2 address for B 2 2 2 2 इसका मतलब ये इसको पॉइंट कर रहा है, राइट? बी Yes, sir. डॉट इन्फो इक्वल टू 20, क्या होगा? B च्या info 20. मध्ये 20 B च्या info part मध्ये 20 वेरी गुड, एकदम बरोबर। बी डॉट लिंक इक्वल टू 0, यहाँ पर आ जाएगा 0। त्यामध्ये सो ये थोड़ा समझ में आ गया क्या हो रहा है यहाँ पे? मतलब इस लाइन का मतलब, इस लाइन का मतलब, इस लाइन का मतलब, ये लाइन का मतलब, ये सब लाइंस का मतलब समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. yes इसलिए कर रहे हैं हम लोग, वो छोड़ दो, सिर्फ इसका अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि नहीं वो देखो, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, थोड़ा क्लेवरली एक और वेरिएबल डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्ट स्टार ओ, स्ट्रक्ट नोड स्टार टी बनाते हैं, टी। तो ये टी क्या है? नोड टाइप का Pointer. पॉइंटर है। pointer ओके, तो ये टी बन गया हमारा, टी। अब मैं क्या करता हूं, टी इज इक्वल टू हेड बोलता हूं मैं, टी इज इक्वल टू हेड। अब मुझे बताओ टी में क्या आएगा? 1 1 1 1. 1 Very 1 good. 1 अब मैं यहाँ लिखता हूं while टी पॉइंटर लिंक नॉट इक्वल टू 0, और मैं यहाँ लिखता हूं printf %d टी पॉइंटर इन्फो, और नीचे लिखता हूं टी इक्वल टू टी पॉइंटर लिंक। देखो धीरे धीरे जाना हम लोग को, ज्यादा ओवरडोज नहीं होना चाहिए। अब मुझे एक बताओ, while टी पॉइंटर लिंक नॉट इक्वल टू 0, ये टी पॉइंटर लिंक का वैल्यू क्या है इस समय, वो देखो, वो बताओ। Yes. 1 1 1 10. नहीं, हाँ 1. टी 1111 है, तो टी किसको पॉइंट कर रहा है? ये पहले ऑब्जेक्ट को, 8 को उसका लिंक पार्ट, एक हो. उसका लिंक पार्ट 2222 है, 2 2 2 22 नॉट इक्वल टू 0, सही है ना? ये नॉट इक्वल टू 0 है ना? yes Yes, sir. yes ट्रू है, इसीलिए हम लोग while के अंदर आएंगे। और ये क्या बोल रहा है? printf %d टी पॉइंटर इन्फो, टी पॉइंटर इन्फो प्रिंट कर दो। क्या है टी पॉइंटर इन्फो? 10 10 वेरी 20. गुड, वेरी गुड, 10 pointer. एकदम बढ़िया। अब टी का वैल्यू बदल जाएगा, टी पॉइंटर लिंक जो है वो जाएगा टी में। तो टी पॉइंटर लिंक क्या है बताओ? 2 2 2 2. 2 2 2 आ जाएगा, टी में जाएगा, ये यहाँ का डेटा डिलीट हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 2222। यहाँ तक समझ में आ गया है? Yes, sir. yes sir फिर से while में जाएगा, Yes, फिर से sir. while में जाएगा। अब टी पॉइंटर लिंक बताओ क्या है? टी 2 2 पॉइंटर 2 2 2 2 नहीं 2. 0.
जीरो 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 है। टी है 2222 और उसका लिंक पार्ट क्या है 0। जीरो सो टी पॉइंटर लिंक ये हो गया 0 और ये 0 नॉट इक्वल टू 0 फॉल्स। तो ये हम लोग वाइल में से बाहर जाएंगे। निकल इसका मतलब एक वैल्यू प्रिंट हो गई और हम लोग बाहर। और एक यहां पर अगर मैंने ऐसा चेंज कर दिया वाइल टी नॉट इक्वल टू नल और ब्रैकेट में यही लिखा हम लोगों ने प्रिंट एफ सेम थिंग प्लीज माइक टी पॉइंटर इन्फो और टी इक्वल टू टी पॉइंटर लिंक। अब है ना ये टी इक्वल टू हेड के बाद में ये लाइन एग्जीक्यूट करो टी नॉट इक्वल टू नल और मुझे आंसर बताओ कि आप क्या प्रिंट होगा। टी इक्वल टू हेड मतलब इसमें आ जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 हाँ। अब इसके आगे ये वैल्यू एग्जीक्यूट करो क्या क्या प्रिंट होगा। 10 10 प्रिंट होगा 10 and 20. 10 20 बोथ प्रिंट होंगे। वेरी गुड। तो आई थिंक आपको ये दोनों फर्क ध्यान में आ गया क्योंकि ये पॉइंटर लिंक था ये 0 होने के बाद 0 हो गया इसलिए बाहर आ गया। ये 20 वैल्यू प्रिंट करने का मौका ही नहीं मिला। मगर जब हम लोगों ने ये टी का वैल्यू 1 1 1 1 किया नॉट इक्वल टू 0 बोला तो 1 1 1 1 नॉट इक्वल टू 0 इसलिए अंदर जाएगा और टी का इन्फो प्रिंट करेगा। सो 1 1 1 का इन्फो पार्ट 10 है तो 10 प्रिंट हो गया। फिर टी को 1 से बढ़ाया हम लोगों ने यहाँ पर टी पॉइंटर लिंक तो 1 1 1 1 का लिंक पार्ट था 2 2 2 2 तो ये यहाँ से चला गया ये बन गया 2 2 2 2। फिर से हम लोग व्हाइल लूप में आ गए 2 2 2 2 नॉट इक्वल टू 0 तो ये कंडीशन ट्रू है अंदर आ गया 2 2 2 का इन्फो पार्ट प्रिंट किया मतलब 20 टी इक्वल टू टी पॉइंटर लिंक। अब ये 2 2 2 का हो गया 0। अब फिर से ये अंदर गया यहाँ पर सॉरी व्हाइल लूप में गया 0 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स वो बाहर निकल आएगा। तो 10 और 20 दोनों वैल्यूज प्रिंट हो गई। सो I hope you have understood the meaning of each of this line. Struct node star T, struct node A, struct node B, struct node star head. Head is equal to ampersand A. Okay. जिनके समझ में नहीं आ रहा होगा या थोड़ा थोड़ा कुछ कंफ्यूजन होगा तो मैं उनको एडवाइस करता हूं कि ये वीडियो बार बार देखें एक एक स्टेप होने के बाद देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको लिंक लिस्ट पढ़ना है आगे तो ये लिंक लिस्ट के लिए बहुत जरूरी है। ओके यही अगर आपको C++ में करना है तो आप स्ट्रक्ट नोड ऐसा बोलोगे ये दोनों वेरिएबल्स यहाँ डिफाइन कर देंगे ए और बी जो है इन्फो और इंट इन्फो बोलोगे यहाँ पर इंट इन्फो यहाँ पर आप बोलोगे नोड स्टार लिंक और अगर ये वेरिएबल डिफाइन करने हैं टी ए बी हेड तो आप सिर्फ नोड टी नोड ए कॉमा बी यहीं पर हेड कर दो कॉमा करके स्टार हेड आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है बाकी जो रहेगा वो सेम रहेगा। ओके कोई चेंज नहीं बाकी पूरा कोड सेम रहेगा सिर्फ ये डिफाइन करने में का ये जो स्ट्रक्ट कीवर्ड है ये आपका हट जाएगा ये भी हट जाएगा बाकी वो C++ में हो जाता है सिर्फ। ओके नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग सिंटैक्स। नाउ हम लोग इससे ज्यादा नहीं जाते आगे। हम लोगों ने जो जो दो चीजें चाहिए हमको कि हाउ टू अलोकेट इट ये हम लोगों ने देखा है और ये भी देखा है तो मैं कुछ एग्जांपल्स बाद में लूंगा जो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है तो विल रेफर टू देम। डू यू हैव एनी क्वेरीज हियर? इफ यू हैव क्वेरीज यू मे प्लीज आस्क एंड देन we'll start the second part of our lecture. If you have any difficulties please let me know.
कुछ क्वेश्चंस है?